Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ सदगुरु जी की वीडियो के ऊपर जिन्होंने कहा है कि हाउ शिवा हैज़ मास्टर्ड ओवर दैट। तो वो चल के पढ़ते हैं। आई थिंक सदगुरु हमेशा बताते हैं कि जो भगवान शिव हैं ये पहले आदि योगी हैं, यानी कि वो थे जो पहली बार किसी ने योगा को एक बहुत ही स्तर लेवल तक लेके गए थे। ये इज़ द फर्स्ट योगी जैसा सदगुरु मानते हैं। सदगुरु की जो आइडियोलॉजी है भगवान शिव को लेके वो बिल्कुल अलग है, टोटली अलग है। वो उनको कहते हैं कि इज़ आदि योगी, उनको मानते हैं। उन पे एक गाना भी है जो कैलाश खेर ने गाया, आदि योगी, बहुत अच्छा गाना है। आप जाके सुन सकते हो, मैंने उस पर रिएक्शन भी दिया हुआ है। मैं ये वीडियो मैंने पहले देखी नहीं है। सदगुरु बहुत अच्छे ओरेटर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। बहुत अच्छी बातें करते हैं सदगुरु। मैं कभी आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप किसी को इंटायरली फॉलो करो, मतलब ए से लेके जेड तक। बट जो इंसान सही बोलता है उसको हमें सीखने में कोई परेशानी नहीं है। सदगुरु से आपको काफ़ी वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी सीखने को मिलेगी, विच विल मेक यू अ बेटर ह्यूमन बींग। चलो चल के ये वीडियो देखते हैं। अगर मुझे अच्छी लगी मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर दूंगा और बाद में आपको बताऊंगा ओपिनियन। आपको अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 3 2 1 गो। Your body should sleep, your mind should sleep, everything should sleep. But you must be awake. Every day you have free enlightenment when you go to sleep. But the problem is you're unconscious. You master your mortality if you just manage to stay awake when you slip into sleep. There are various aspects to that which we refer to as Shiva. The boundless reality is referred to as Shiva. The greatest of the yogis has been referred to as Shiva. It looks cool, yeah. His dance is referred to as Shiva. His music is referred to as Shiva. His stillness is referred to as Shiva. But of all this, he being a yogi is of the greatest importance in terms of opening up a door of possibility for every other human being. Somebody may be many things, but for the world, that dimension which is a possibility for the world is the most important thing. So he being a yogi is the most important thing. Being a yogi means many things. One aspect of a yogi is that he sleeps in his wakefulness and is awake in his sleep. That this must be fully awake, but if you check the parameters of the body, it must be asleep. In sleep, everything should be asleep, but you must be awake. Your body should sleep, your mind should sleep, everything should sleep, but you must be awake. When you fast asleep, you are in perfect tune with the existence, one with the existence, isn't it? Nature has given you this. If you've forgotten every day when you go to sleep, it makes you one with the existence. In the same sense of unity, if you can wake up and walk around, you made it, isn't it? Every day you have free enlightenment when you go to sleep. But the problem is you're unconscious. ये मैंने पढ़ा हुआ है। So the sadhana essentially is just this, that from wakefulness when you go to sleep, a certain part of you goes to sleep, a certain part of you, if it still stays awake, then you made it. Otherwise, when you wake up, a certain part of you still continues to sleep, then you made it. If you are awake and fast asleep at the same time, you are asleep and awake at the same time. This is called Turiya. Turiya. If you are in a state of Turiya, we say you are a Mrutyunjay. That means you are deathless.
because if you can be awake in your sleep, you will also be awake when you have to shed the body. So there is no question of death for such a person. Because life and death are happening at the same time. सच बात है ये। It is only the ignorant who think right now I am alive and one day I will die. No. Both are happening at the same time. They are not two different things actually. Only for the sake of understanding, we have to divide them. Otherwise, it's just life and life. One dimension of life and another dimension of life. So this transition from one dimension of life to another becomes an easy doorway. Every day you have this doorway available to you. That is, between wakefulness and sleep is as good as life and death. If you know how to exploit this doorway, if you stay alert till that last moment, do you ever know when you actually slept off? Ouch. You think you're there, but after some time, you don't know when you slept. If you can take yourself to that moment, it's as good as being conscious at the moment of death. You master your mortality if you just manage to stay awake when you slip into sleep. See, this is an opportunity for you. The best preparation for death is make an attempt to try to fall asleep consciously. Instead of drifting away, if you shift from wakefulness to sleep consciously, death will become a play. So, the moment of sleep is a tremendous opportunity. If you sleep in a certain way, tomorrow morning when you wake up, you can be significantly one notch up. Every day you have this opportunity to practice death. If you can manage that moment, like, you can do this consciously, right? Just like that, from wakefulness to sleep. If you can do it that way, that's it. You're Mrutyunjay, because there's no death for it. All right, the video has been over. भगवान शिव के बारे में जो कि सतगुरु जी ने बताया कि बहुत अच्छी बातें बताई, पर इन्होंने एक चीज़ जो बहुत अच्छी कवर करी है कि वो है डेथफुलनेस, यानी कि मृत्युंजय, मोर्टैलिटी ओवर योर डेथ। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था इस पर वीडियो बनाओ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। मैंने इसको बहुत पढ़ा भी है, इसको बहुत रीड अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करी है। मैंने कई महीनों तक इसको मैंने प्रैक्टिस भी किया है। इसको अंग्रेज़ी टर्म में इसको कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। अगर आप नहीं जानते हैं, आई थिंक, पता नहीं, इट्स सिमिलर, इज़ वेरी सिमिलर, बट इट्स कॉल्ड एस्ट्रल प्रोजेक्शन। पढ़ना जाके इसके बारे में, ASTRAL, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, PROJECTION, प्रोजेक्शन बेसिकली। इसका होल कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अपने आप को बिल्कुल स्लीप मोड पे लेके चले जाओ, जहाँ पे आपकी बॉडी पूरी पैरालिसिस हो जाए, जहाँ पे ना आपका बदन मूव करे, ना आपका टंग मूव करे, ना आपकी आंख मूव करे। यू आर बिकम इनटू ए स्टिलनेस। आप अपने बदन को मूव नहीं कर सकते। इन द मीन टाइम यू हैव टू गो इन द स्लीप मोड, जैसा कि सतगुरु जी ने कहा, और इतने डीप स्लीप में जाना है कि अनकॉन्शियसली यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर अप, यू आर नॉट स्लीपिंग। मैंने बंद कर दिया करना। इन्होंने बस ये बताया है, पर इसके आगे की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है कि आप, ये प्रोसेस है पूरा, तो आपको बेसिकली बिल्कुल स्लीप मोड में जाना है और बहुत देर तक स्लीप मोड पे रहना। आपके बदन में एक वाइब्रेशन होगी, गर्मी होगी, वाइब्रेशन होगी, बहुत मज़ा आएगा। बट इट्स बेटर टू रीड एंड डू अ रिसर्च रादर देन डूइंग दीज थिंग। तो बहुत अच्छे से आप सो जाओ, प्रैक्टिस करो। कॉन्शियसली आप अपने बदन को सुला रहे हो, पर अपने माइंड को आपको अवेक रखना है। यू हैव टू रिमेंबर,
और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, मैंने 2-3 महीने प्रैक्टिस करी है। मैं हमेशा बिल्कुल डीप मोड में सोने के बाद मैं सो जाता था, फिर आँख खुला देखा सुबह हो गई। ये मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है। पर मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है एट द एंड में, कि अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप अपने बॉडी को अपने आप को अपने बॉडी से आप डिटैच कर सकते हो। आपका जो सोल वर्ल्ड है, लाइक देयर इज अ वर्ल्ड, द डिफरेंट डायमेंशन दैट विल कम आउट ऑफ योर बॉडी, और आप अपने बदन को सोते हुए फिजिकल बॉडी को आप लिटरली देख सकते हो। जी हाँ, ऐसा होता है। और वहाँ से एक एक लाइफ लाइन की जो तार होती है जो आपके बेली बटन से आपकी बॉडी में अटैच होती है, वो ये सिग्निफाई करती है कि आप अभी जिंदा हो, आप मरे नहीं हो। और बताया जाता है कि वो लाइफ लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, जो कॉर्ड होता है वो खत्म कट जाता है जब आपकी डेथ हो जाती है आपको, तो वो कनेक्टेड होती है। और आप कहीं भी जा सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो, आप जो इमेजिन करोगे वो कर सकते हो आप। ये बहुत एक्सट्रीम और बहुत ही, और एस्ट्रल प्रोजेक्शन ये जो मैंने बताया ये आपको डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप मार्वल के फैन हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज आपने देखा होगा, तो जहाँ पे देखा होगा कि जो बेसिकली बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो होते हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं ना, जो भी स्टीवन डॉक्टर स्ट्रेंज, आपने देखा होगा कि जब वो नेपाल जाता है तो काठमांडू में, तो वो सो रहा होता है फिजिकल बॉडी पर, वो सोल वर्ल्ड से उठ के वो किताब पढ़ रहा होता है। तो ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन ओपनली दिखाया गया, तो ये एग्जिस्ट करता है। बहुत बड़ी कम्युनिटी, आप जाके पढ़ना इसके बारे में। मैंने एक बार किया था और एक बार मुझसे हुआ भी था। तो मैं लेट के मैं सो रहा था, और ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था क्योंकि मैं बहुत कर चुका था और मैं करके थक गया था मैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा यार रोज़, क्योंकि मुझे अगले दिन ऑफिस भी जाना होता था, तो मैं अपने बॉडी को कम से कम एक पैरालिसिस मोड पे कम से कम मैं 2-3 घंटे रख लेता था। और मैं कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा, मेरी बॉडी बिल्कुल पैरालिसिस मोड पे 2-3 घंटे से, और हो ही नहीं रहा। और रात की नींद खराब हो जाती थी मेरी, और मैं अगले दिन मुझे ऑफिस जाना होता था, मैं कर नहीं पाता था। एक टाइम पे मैंने ऐसा किया था, मैं एक्चुअली बिल्कुल पैरालिसिस मोड पे चला गया, और मेरे सर के ऊपर एक छोटा सा कलर था, तो मैं उस पर फोकस कर रहा था। मैं उसको फोकस करा, मैंने आंख बंद कर लिया, और वो कलर को मैं फोकस करता रहा, और मैं बिल्कुल पैरालिसिस मोड पे चला गया, बिल्कुल पैरालिसिस मोड पे चला गया। मेरे स्पाइन के अंदर एक बहुत ही हाईली वाइब्रेशन हुआ, और वाइब्रेशन होने के बाद उस वाइब्रेशन को आपको कंट्रोल करना है, उसको रोकना नहीं है। कंट्रोल हुआ, और एक टाइम पे मुझे मैं आपसे, पता नहीं आप लोग इस बात पे बिलीव करोगे नहीं करोगे, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करी है लाइफ में कि आपको लगेगा कि ये आदमी चूतिया बना रहा है हम लोग का, पर ये चीज़ है, पढ़ो जाके आप। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, लूसिड ड्रीमिंग। एस्ट्रल प्रोजेक्शन अलग है, लूसिड ड्रीमिंग अलग है। लूसिड ड्रीमिंग अनकॉन्शियसली होता है। आप में से कितने लोगों ने सपने में देखा हो कि आप उड़ते हुए कहीं जा रहे हो, वो लूसिड ड्रीमिंग है, अनकॉन्शियसली होता है। मेरे साथ हुआ है कितनी बार, आपके साथ भी हुआ होगा। पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन में आप कॉन्शियसली करते हो, समझ में आया कि नहीं? तो इसमें आप पढ़ना, इतनी बड़ी कम्युनिटी है ना इंटरनेट पे जो कि कहती है कि हमने भी एक्सपीरियंस करा है ये, बहुत बड़ी कम्युनिटी है बाहर। और ये चीज़ हुई, और मैं लेटा हुआ था, और सडनली 2 मिनट 1 मिनट के लिए मेरी आंख खुल गई, और आंख, फिजिकल आंख मेरी बंद है, लाइक माई आईज इज क्लोज, बट माई सोल आईज ओपनड अप, एंड आई लिटरली, आई कैन सी एवरीथिंग इन माई सराउंडिंग। और जितना मैंने रिसर्च किया था उसमें बताया जाता है कि अगर आप कभी ये एक्सपीरियंस करो तो आपको घबराना नहीं है। इमरान खान कहता है ना, घबराना नहीं है आपको, वही वाला है। अगर आप बहुत घबराते हो ना, तो आपकी जो जो सोल वर्ल्ड होता है वो बिल्कुल स्नैप बैक हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो मेरी बॉडी एक्चुअली में सो रही है, पर मेरी आँख खुली और मैंने अपने सराउंडिंग में देखा, और मैंने अपनी बॉडी देखी। मैं इतना डर गया कि मेरी बॉडी वॉज स्नैप बैक टू माई फिजिकल बॉडी। और उसके बाद मैंने दोबारा प्रैक्टिस नहीं करा। तो तब मैं अपने भाई के घर पे रहा करता था, तो मेरे एक मन में था कि चलो भाई जो है ना अगले कमरे में है, तो एक शांति हो रही थी। अब तो मैं अकेले रहता हूँ, तो मैं ये सब करता नहीं, क्योंकि साला कहीं मर उड़ गया तो साला कोई देखने भी नहीं आएगा कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया। तो ये मैंने खुद किया हुआ है। कोई मुझसे आके बोले कि नहीं नहीं ये बकवास बातें, देखो, बकवास वही लोग कहते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, पर जिनको नॉलेज है वो कहेंगे कि ये सच बात है। और ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने एक्सपीरियंस करा है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल।
आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3-3 घंटे मेडिटेशन करा है, 3-3 घंटे मेडिटेशन कंटिन्यूअसली। कान में मैंने एक बहुत ही डीप मेडिटेटिव म्यूजिक लगा लिया और मैं 3-3 घंटे ऐसे बैठ के मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। अब मैंने बंद कर दिया आई गेस, एक तो मैं अकेले भी रहने लगा और अकेले करने में थोड़ा डर भी लगता है। तो अब जैसे मेरी शादी वादी हो जाती है तो मैं दोबारा इसको स्टार्ट करूँगा। पर ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जो सदगुरु जी ने बताया है ये मुझे अच्छा लगा सुन के, पर बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। उसको कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। जाके पढ़ना और फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे डिस्कस करना है इस टॉपिक पे। मैं आपसे डिस्कस करूँगा खुल के कि अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा है। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, मैंने लिटरली अपनी बॉडी को देखा एंड मैं इतना ज़्यादा मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है ना, आपको अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है। जब अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो ना तो आपको बस हल्का सा एफर्ट लगाना होता है कि अपनी बॉडी से डिटैच कर सको अपने आप को। और भाई मेरी तो फट के चार हो गई थी। आई बिलीव इन दिस क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिस करा है। आप चाहो तो प्रैक्टिस करना, बड़ा मज़ा आएगा। पर ये 1-2 दिन में नहीं होता है, कई सालों की मेहनत होती है। इज़ ऑल अबाउट योर माइंड एंड फोकस। चलो फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं क्या ऐसी बातें कर दी मैंने जो ना हिंदू से ना मुस्लिम से रिलेटेड है, तो मुस्लिम लोग तो पागल हो जाएंगे, कहेंगे हमको तो पता ही था कि साला ये काफिर है। हिंदू लोग भी कहेंगे साला ये तो हमारा भी चूतिया काट रहा है। एनीवे, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।